आत्मनमन, अभिनंदन ओम तथास्तु पर। और मैं मनीषा अडुकिया। टुडे वी विल talk about once you have taken up the 14 days meditation challenge and you have actually followed it. It's a subjective topic. You might feel different because each individual has a unique identity when it comes to the external five senses. We all are Aham Brahmasmi within the unified consciousness, but yet when it comes to the external part, all have got different forms and different physical, chemical and biological beings. We all are different in these terms. हम सभी भिन्न हैं। जब हम बाहरी रूप से देखते हैं तो हम सबका रसायन, भौतिक और सब कुछ अलग अलग होता है। बाहरी तौर पे, अंदरूनी तौर पे हम सभी आत्मन हैं। आप भी आत्मन हैं, मैं भी आत्मन हूँ, आप, मैं सब एक हैं। तो अगर आपने 14 डेज़ मेडिटेशन चैलेंज किया है तब आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने नहीं किया है तो वो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप उसको करिए। वो ध्यान की परम अवस्था है जो अभी तक मेरा अनुभव है। हो सकता है आपका अनुभव मेरे से भी बेहतर हो। It might happen that you might have even more higher levels of consciousness. This is what I have experienced till now. This is what sharing things externally, बाहरी तौर पे अगर हम चीज़ों को व्यक्त करें शब्दों के माध्यम से, तो मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, बस वही है ये। We all are always engaged, not all, we are always engaged either doing or thinking something. Not for a moment do we remain quiet and still. हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, या हमारा मन मस्तिष्क व्यस्त रहता है। एक भी क्षण के लिए हम शांत या खाली नहीं होते हैं या स्थिर नहीं होते हैं। वो घोड़ा गाड़ी अंदर चलता रहता है या वो बटरफ्लाई अंदर चलती रहती है। In fact, we also are so involved in the functions of our body and mind that we often forget our real nature. बिल्कुल सही। हम अपने शरीर के जो फंक्शंस हैं उसमें इतना व्यस्त होते हैं कि हम अपने वास्तविक स्वभाव को कभी झांकने का मौका ही नहीं मिलता है। It is not necessary to free yourself from these elements which are not part of you. बिल्कुल सही है। अगर हम संतों की बात करें, if we talk about saints, then भगवान मुरुगा, who is also known as Kartikeya, he is believed to have appeared before sage Arunagirinatha or Tiruvannamalai and advised him, be quiet and silent as you really are. The Tamil words Kartikeya used were Summa Iru, meaning to remain still and silent without any mental or physical activity. जहाँ तक मुझे रिलेट कर पा रही हूँ, भगवान रमना महर्षि की बात कर रहे हैं। When asked who are you, people often reply, I am a businessman, I am a sportsman, or I am a teacher, invariably identifying themselves with the functions performed by their mind, body and intellect. Mind, body and intellect are mere tools for us to function. They do not constitute our real selves. What makes us conscious of our existence is the self, which is why Kartikeya says, remain still and rise above the body and mind. The advice which the sage of Tiruvannamalai shared with others through his immortal work
तिरुपुगाज। अगर हमसे कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तो हम जनरली कहते हैं बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, स्पोर्ट्समैन है, टीचर है, वकील है, डॉक्टर है, पुलिसमैन है। हम माइंड बॉडी इंटेलेक्ट से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, उसके फंक्शंस से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, अपने रियल सेल्फ की ओर जा ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि स्थिर रहो और अपने बस स्थिर रहो। It may be easy to remain without any bodily activity, but it is difficult to remain without mental activity. बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है हमारा शरीर स्थिर हो जाए, बट दिमाग तो अपना काम करते ही रहता है. The mind which always turns outside and keeps generating thoughts is the main obstacle in reaching one's higher objective. Scriptures and saints are unanimous in their view that कंट्रोलिंग द माइंड इज़ द ओनली वे टू स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट. यहाँ मैं सहमत नहीं हूँ इनसे. वो कहते हैं कंट्रोलिंग द माइंड. आप माइंड को जितना कंट्रोल करेंगे वो उतना भागेगा. बेलगाम घोड़े को जैसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं वो पागल हो जाता है. तो कंट्रोल नहीं करना है, मेरे हिसाब से लेट गो करना है. जो भी आ रहा है उसको आने देना है, जाने देना है. कंट्रोल जहाँ करेंगे वो बेलगाम हो जाएगा. Where we think of controlling, it becomes lunatic. It becomes even more challenge. So according to me, let it be. रमना महर्षि, मैंने कहा था ना, रमना भगवान की बात हो रही है यहाँ पर. जहाँ पर वो अरुणाचलम की बात आई और वो सब आई, तो तमिल की बात आई, तो भगवान रमना है वहाँ पे. Ramana Maharishi says the best way to overcome the mind is to remain silent, because silence has the power to silence the mind. बिल्कुल यही, कुछ नहीं करना है, साइलेंट रहना है. साइलेंस से वो अपने आप साइलेंस को कंपाउंड करेगा. He said, diving deep into the recesses of the heart and mind will dissolve itself there. This is achieved by just remaining still and silent. Summa iru. This is what. बिल्कुल यही था कि स्टिल रहे और साइलेंट रहे. वो अपना काम खुद ब खुद करेगा. It is right to sit idle without doing anything when there are duties to be performed. The term summa iru does not mean remaining idle all the time. It is enough if you remain quiet, still and silent, free from physical and mental activity just for an hour or two on a day of your convenience. The spiritual energy that is generated during this state is so great that its impact will be felt for many days thereafter. In fact, the positive energy that arises out of the Mauna sadhana will help you to perform your duties better and continue the sadhan for longer hours. यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे कि हम अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसके लिए हम अकाउंटेबल हैं उसको भी पूरा नहीं करें, हम खाली सिर बैठे रहें विदाउट डूइंग एनीथिंग. ये नहीं सही, ये सही नहीं है. यहाँ पर सुम्मा इरू का मतलब है कि आप कुछ देर ध्यान में स्थिर बैठें और साइलेंटली बैठें, फ्री फ्रॉम फिज़िकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़. मन मस्तिष्क भी अपना काम करते रहता है. अगर आप स्थिर भी बैठे रहते हैं तो स्थिर बैठें. मन और मस्तिष्क दोनों रूप से कुछ घंटों के लिए. इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो शांति महसूस होती है, वो आपके काम में भी झलकता है. और ये साधना आपको लंबे समय तक बहुत आनंद देता है, जो आपके काम में भी झलकता है. और आप थोड़ी देर बैठेंगे तो फिर आप लंबा और लंबे रह सकते हैं स्थिर, माइंड एंड बॉडी दोनों से. डिस्पाइट बीइंग हार्ड वर्किंग एंड वेल क्वालिफाइड, many of us face a lot of hurdles in achieving our objectives. We feel the need for something else from an outside source. बिल्कुल सही बात है. हम बहुत हार्ड वर्किंग है, वेल क्वालिफाइड है,
जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, हमें एक आउटसाइड सोर्स की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। योगीज से अब बहुत ध्यान दीजिएगा, ये सारा राज खुलने वाला है। योगीज से दैट दिस समथिंग, द लिटिल हेल्प फ्रॉम आउटसाइड इज़ कॉल्ड डिवाइन्स ग्रेस। बिल्कुल सही। ये बाहर का जो हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई या आउटसाइड सोर्स जिसको हम कहते हैं, जो हमें चाहिए होता है पुश करने के लिए, ये कुछ नहीं है, डिवाइन ग्रेस होता है, भगवान की मेहर होती है, गॉड्स ग्रेस। यहाँ फिर मैं रमना महर्षि की बात लूँगी। अकॉर्डिंग टू रमना महर्षि, डिवाइन ग्रेस इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉस्मिक फ्री विल इन ऑपरेशन. It can alter the course of events in a mysterious manner through its own unknown laws, which are superior to all natural laws. Divine grace is the power transmitted by the Supreme to everyone, and it flows freely to all. If we do not experience it, it is because we have put our mind over devotion. Once we keep the mind away through silence and stillness, grace will follow us. Grace will follow to us automatically. और डिवाइन ग्रेस क्या है? वो कॉस्मिक एनर्जी या कॉस्मिक फ्री विल से ही आता है। वो हर किसी के पास मौजूद है, भरमार है उसकी ब्रह्मांड में। बट ये बहुत मिस्टीरियसली चीज़ों को परिवर्तित भी कर देता है अननोन लॉज के द्वारा, एंड विच इज़ सुपीरियर टू द नेचुरल लॉ ऑल्सो। एंड डिवाइन ग्रेस एक ऐसी शक्ति है वो जो सुप्रीम के द्वारा सबके लिए बराबर मात्रा में ब्रह्मांड में खुली बह रही है। हम इसको महसूस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने माइंड को इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। जब हम अपने माइंड को एक तरफ रख देते हैं, बॉडी और फिजिकल और मेंटल स्टिलनेस और साइलेंस के द्वारा, तब वो डिवाइन ग्रेस ऑटोमेटिकली फ्लो करना चालू कर देता है। यही है। ये तो एक छोटा सा बहुत मैंने शेयर किया है 14 डेज़ मेडिटेशन चैलेंज का जो अनुभव है। आप भी इसको कीजिए। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाहते हैं तो। और आपका अपना अनुभव है, आपकी अपनी ज़िंदगी है। मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगी। Do share, and if you want to join this meditation challenge, you can connect with me by mentioning below the video also. And I would like to keep my words silent here, and that's it. Jai Hind, Manisha Adukia.